भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। You're watching Bharti News. This is Isha Shri reporting from Bharti Vidyapeeth Institute of Computer Applications and Management, where SARC Journalism Summit on the topic of role of journalism in peacemaking and cooperation of South Asian countries is being held, where there are many people like academicians, professionals, media professionals, and journalism students. And this topic, this meet basically focus on ethical journalism, accurate journalism, and fact-based journalism. Now we will be talking with our delegates and speakers to get their views. The president of SJF, South Journalist Forum, Mr. Raju Lama, has been arrived here. Let's discuss few questions and few points about the journalistic approach. Sir, मैंने आपकी कहानी सुनी थी जो आपने अभी बताया था कि how India took stand for मतलब many such मतलब forums, and how do you think Nepal and India के relations build up होने चाहिए in SAARC? नहीं नेपाल और इंडिया का रिलेशन तो अच्छा है, अभी भी अच्छी चल रही है और हम कामना करते हैं भविष्य में भी अच्छी चलिए। मगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया और नेपाल के रिलेशन से सार्क अच्छा नहीं बनेगा। सार्क अच्छा होने के लिए जो साउथ एशियन रीजन के जो जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, तो इन सारे लोगों से भी अच्छा रिश्ता होना चाहिए। और सार्क जर्नलिस्ट फोरम सिर्फ नेपाल और भारत के बीच में ही नहीं, सारे देशों से रिलेशन अच्छी होने के लिए हम बात कर रहे हैं। So we have with us Dr. Abdur Rahman. Sir, I want to ask कि अभी के टाइम में जो पीस का एक चल रहा है, फेस चल रहा है, और सार्क में भी पीस की बात की गई है. So let our new पीढ़ी know कि what is the basic definition of peace in journalism. Thank you very much. Actually, we work for peace. South Journalist Forum, South Asian countries, our journalists in international organization already work for peace in South Asian zone. It is our main mission to work peaceful area in this region, but we work every country must be want to be peace, but critically this time is passing in this moment. We like India, Bangladesh, like India, Pakistan, India, Afghanistan. So, sir, how was today's conference? What insight do you want to give? It was very good event and we have enjoyed well, and our delegates from different countries also enjoyed the entire program. And through this event, we only want that the borders should be removed by the pen and paper. And our motto to establish the SJF, to fight against the borders, because you have seen in the event that you are not be able to invite the Pakistani journalist, the Afghanistani journalist, and even the Maldives and Bhutan journalists also always in dilemma to participate in Indian events. So we have messaged, send your videos. By that we have proven that the boundaries can't stop anyone to express the ideas, and journalism is one of the arms in that expressive ideas.
contemporary journalist to know what is the basic criteria a journalist must know in this contemporary world? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि अभी जो टॉपिक्स चल रहा है पूरे विश्व में, हम लोग सार्क देशों के, चूँकि हम सार्क बिहार चैप्टर के सार्क जर्नलिस्ट फोरम के अध्यक्ष हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, एडिटर मानवाधिकार टुडे भी हैं, तो हम जिस धरती से आते हैं वो लोकतंत्र की प्रथम धरती मानी जाती है, यानी रिपब्लिक डेमोक्रेसी वैशाली जो इंडिया में है। और जब देश के कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश से बाहर जाते हैं तो इस संबोधन से ही अपनी पंक्तियों को शुरू करते हैं कि हम उस धरती से आए हैं जहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। और वो सौभाग्य हमें भी प्राप्त है कि मैं भी उसी धरती से हूं जहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, बढ़ चढ़ के मतलब टिकटॉक और इन सब चीज़ों में लगी हुई है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा को के लिए, जो नेपाल के युवा है, जो हिंदुस्तान के युवा है, उनको क्या मतलब मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो यूथ कहा जाता है, नेपाल में यूथ की संगठन जो है बहुत उग्र रूप में है, बहुत ऊंचाई पे है। और बहुत ऊंचाई पे होने के कारण से अभी जो हमारे देश है परिवर्तन खोज रही है। और परिवर्तन के लिए इसी फाल्गुन 21 गते नेपाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है। अब उसमें जो प्रतिफल आएगा उसको देखा जाएगा। So we have with us Rahul Samantha sir. He is a prominent investigating journalist from Sri Lanka and he has more than 22 years of experience in this field. Sir, I want to ask you, in this contemporary world where ethics is like nothing, especially in our field, in journalism field, I want you to teach our new upcoming journalist to know what is the ethics, real base of our investigation. Yes, first of all, thank you very much for joining with me. We want to build up the ethic over the world journalists because not only ethic, no journalism. Journalism is build up always ethic. Journalism not use the ethics, not guidelines to ethics. Journalism is destroyed all the world. That's why some politicians and some peoples are always blamed to journalists and associations, unethicals doing that. That's why. So I give the message for the student all over the journalists. Please, you are a good journalist. Please. Be in ethics. You can I don't know, country by country ethics is various ethics guidelines. Some news agencies build up his own ethics, but ethics is same to all of the journalists. Is the very interest that. So, ma'am, would you share something about the SARC summit that you attended at BBI camp? बेसिकली जो सार्क जर्नलिस्ट फोरम है, सार्क जर्नलिस्ट फोरम सार्क कंट्रीज़ में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी वॉइस है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वो केवल एक नक्शा नहीं है बल्कि एक कॉमन कॉन्शियसनेस है, एक साझी चेतना है। क्योंकि हम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, साझी हैं। जैसे हमारी नदियाँ साझी हैं, हमारे कल्चर साझे हैं, हमारा समुद्र साझा है, हमारे पहाड़ साझे हैं और हमारी जो कंसर्न है वो भी साझे हैं। हमारी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, वो सब भी साझे हैं। तो इसलिए हम आपस में इस समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जबकि हमें एक दूसरे के सामने नहीं खड़ा होना है, हमें एक साथ खड़े होना है। तो एक साथ खड़े होना है और जो सरहदों की जो दीवारें हैं, उन दीवारों के पीछे एक दूसरे को लेके जितने संदेह है, जो संशय हैं, उनको हटा करके एक साथ
अपनी समस्याओं पे काम करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, उसकी जो भूमिका है वो थोड़ी सी डिफरेंट और हो जाती है। ये बात सच है कि पत्रकारिता जो है वो एक सच की आवाज़ बनती है। बिल्कुल सही है, सच की आवाज़ बनना है, लेकिन सच की आवाज़ के साथ उस सच को कैसे हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए सुंदर भी बनाया जाए, इसके लिए भी काम करना है। सर, हमारी ऑडियंस को बताइए कि पहले के जर्नलिस्ट और अब के जर्नलिस्ट में क्या फ़र्क है, क्या एथिकल बैरियर्स आ गए हैं अब? वहाँ से हम लोगों को जो रिपोर्ट जो आती है कि पहले जैसी ये बात जर्नलिस्ट में नहीं रही। हर जगह जर्नलिस्टों के ऊपर जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। वो जो सही रिपोर्टिंग करने अगर आप जा रहे हैं तो आपको सही रिपोर्टिंग करने के लिए रुकावटें डाल देते हैं। क्यों? इसमें उनका नुकसान है। हम सही रिपोर्ट करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई हम जैसी तरह बताया जाता है हमें उसी तरह हम बताएंगे, उसी तरह हम काम करो, चाहे वो भली हो या चाहे बुरी हो। लेकिन ये इसको जर्नलिज्म नहीं कहता, जर्नलिस्ट नहीं हो सकता ये। अगर आप जर्नलिस्ट बनना है, देखिए आपका जो कलम में जो पावर है वो एटम बम में भी नहीं है। अगर आप सच्चाई लिखते हो तो, अगर आप समझिए ऐसा फेक लिख देते हैं तो समझिए वो जर्नलिस्ट कहा नहीं जा सकता। हम तो उसको जर्नलिस्ट भी नहीं कहेंगे। अभी बीच में काफ़ी अस्थिरता भी आई थी, जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि क्या जेनजी प्रोटेस्ट जैसी चीज़ें कहीं और जो सार्क नेशंस में हैं वो क्यों नहीं आ पाई अभी तक से, नेपाल में अगर आ गई? देखिए, अब नेपाल जो है, नेपाल से जो भी जेनजी कहा जाए, यूथ कहा जाए, जो भी आंदोलन हो, जो भी नेपाल से जिस मुद्दे को उठाया जाता है, उस मुद्दे को और कंट्री में और देश में अगर वो लोग भी यूथ लोग फॉलो कर दे तो हो सकता है कि बहुत सारे देश में बहुत सारे बदलाव हो जाएगी। नेपाल का यूथ जो है अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और वो परिवर्तन खोज रहे हैं और वो बहुत जल्द उसका रिजल्ट आने वाला है। वो है फाल्गुन 21 गते जो है हमारे विक्रम संबंध में, उसमें देखा जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Hello everyone, we have been joined by our esteemed judge Sabdab Malik. So let's discuss about him, about the peace and sovereignty. How ethical and journalistic approach do you think SAARC nations have to build? एक्चुअली सार्क का जो मोटो है वो क्या है कि जितने भी सार्क में जितने भी ये हमारे पत्रकार साहब है, जो घटना हो रही है वो घटना न हो। अगर घटना हो गया है तो विज्ञप्ति मार्फत हो या सरकार को दबाव दे करके हो, जैसे भी हो, उसको कम करना हम लोग का मोटो है। सर, मैं जानना चाहूँगी और मेरे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि अभी की जो जर्नलिस्ट की पीढ़ी है उसको पहले वाली जर्नलिस्ट की पीढ़ी से क्या सीखना चाहिए। आप अगर हमारे पीढ़ी को कुछ बता पाए, कुछ ऐसा जिनसे वो समझ सके कि जर्नलिस्ट होना कोई छोटी बात नहीं होती है। सबसे पहले धन्यवाद। आज की जो जर्नलिस्ट की पीढ़ी है वो न्यूज़ को सर्च करने के बजाय वो न्यूज़ बनाने की कोशिश करता है। आज की होता है जो फास्ट वाला होता है, रैपिड एक्शन, जैसे कि कहता है सचिन ने छक्का मार दिया, वहाँ 300 लोग मर गया, इस टाइप पर के लोग विश्वास कर रहा है। लेकिन सबसे पहले होते कुछ चीज़ें जो होती आज के लोगों में, पढ़ने की आदत कम है, फील्ड में घूमने की आदत कम है। आप जब तक वो ज़मीनी नहीं खोज पाएंगे तब तक आप इसको बेसिक नहीं दे पाएंगे। आज के लोग हैं कि नहीं, जस्ट मिल गया कुछ न्यूज़, बैठे बैठे चैम्बर में बना लिए, उस तकलीफ हो रही है। So how do you think that journalism could affect the cross boundary relationship between the SAARC nations? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, वो दीवारें खड़ी की तो उन दीवारों के बीच में हमें झरोके बनाने हैं, खिड़कियां बनानी हैं, ताकि एक दूसरे के सुख दुख को हम जान सकें और एक साथ खड़े हो सकें। तो जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से यहाँ पे जर्नलिस्ट, कितने सारे जर्नलिस्ट आए हैं, और जो लोग नहीं आ सके हैं पाकिस्तान से या भूटान से, वो लोग अपनी अपनी आवाज़ें वहाँ से भेज रहे हैं, वीडियो के ज़रिए या जिसके भी ज़रिए। तो ऐसे समय में तमाम देशों के भीतर जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करना, और जाहिर सी बात है ऐसे हाईलाइट करना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बल्कि हम टुवर्ड्स पीस यानी शांति की ओर बढ़ सकें। तो आज की जो मीडिया है वो जो एक सेंसेशनलाइजेशन जो कर रही है,
तो हमें वो सनसनी नहीं बनना है, बल्कि सेंस के साथ। Definitely, the role of journalism is to afflict the comfort. इट मीन्स वैशाली भारत। और यह आज से 2500 वर्ष पहले लोकतंत्र की शुरुआत लिच्छवी गणराज्य के समय हुई। और आज चूँकि पहले लोकतंत्र की जब शुरुआत हुई उससे पहले देश में या विदेशों में क्या था, शासन था। कैसा शासन? राजतंत्र। तो उसमें जनता का कोई अधिकार नहीं होता था, बोलने का अधिकार या अपने जो नेतृत्व करते हैं उनको चुनने का अधिकार। तो जब रिपब्लिक डेमोक्रेसी आई हमारे वैशाली में, तो धीरे धीरे दुनिया के 160 देशों में आज फैल गई। और यही आज डेमोक्रेसी पूरे देश और विदेशों को गाइड कर रही है। और आपसी जो बात हम लोग करते हैं, शांति की बात, यानी आप अपनी बात को रखेंगे तो जब अपनी बात को रखेंगे, कोई सुनने वाला व्यक्ति होगा तो वो रिवॉल्ट नहीं करेगा। जब रिवॉल्ट नहीं करेगा तो वहीं पे ह्यूमन राइट्स लागू होगा, लोकतंत्र लागू होगा सही रूप से। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं शांति की। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र की शुरुआत हुई, इसलिए वो अप्रोच हुआ शांति का। So, Mr. Anirudh, would you like to give a message to our youth, to our young generational journalists, that how SAARC nations could apprehend these borders from the field of journalistic approach? First of all, you have to search for the positive news from the different countries and always misconcept yourself, because you have already some conceptions that you have made from the different news and media houses. They are saying पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट में आज भारत ने जंग जीत लिया, बट जंग इज ऑन द बॉर्डर्स, नॉट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सो इस तरीके की जो न्यूज़ होती हैं, इस तरीके के जो खतरे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। आपको ये समझना है कि यूथ के तौर पर आपने शायद 1971 का वार नहीं देखा, 1965 का वार नहीं देखा, बट द मेमोरीज अगर हम आपको बार बार हिट करेंगे कि यही हुआ था, यही हुआ था, यही हुआ था, और तो आपकी जनरेशन जो है, यूथ जनरेशन जो है, उसी तरीके से उस दुश्मनी को जो बहुत पहले शुरू हुई थी उसको ही रिकॉल करता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फॉरगेट दैट हिस्ट्री। वी नीड समटाइम्स because to motivate the journalist, but at a time we have another youth who is thinking about the society, who is thinking about the neighboring countries, so they have a different idea from the war supported youths. So journalists should be in war but with pen, not with the arms. So I just say कि आपको यदि कुछ करना है तो कलम उठाएं, तलवार नहीं उठाएं, और अधिकार उठाएं, बेकार ना उठाएं। Definitely, sir. That was very wise words, I would say, कि कलम उठाए तलवार नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट का हथियार आखिर में कलम ही होता है। थैंक यू वेरी मच। आपके पास माइक भी है, तो ये भी आपके पास बड़ा हथियार है, इसका भी इस्तेमाल करें। तो कलम, शाही और कैमरा, ये सारे मिल करके आपको अच्छा पत्रकार बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की, जैसे कि राजू लामा, राहुल समन था, और इस समिट में, सार्क जर्नलिज्म समिट में हमने जाना कि कैसे हमारी जो एथिक्स है, जर्नलिज्म की एथिक्स है, वो चेंज हुए हैं ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, हिस्ट्री और बाकी सब चीज़ों ने कैसे हमारे इस पोजीशन को, हमारी जर्नलिज्म को अफेक्ट किया है। हमने ये भी जाना कि कैसे श्रीलंका में और नेपाल में जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि कैसे एथिक्स और रोल्स एक जर्नलिस्ट को एक ट्रू जर्नलिस्ट बनाते हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे माइक और पेन दोनों ही कितने पावरफुल रोल है हमारे इस जर्नलिस्ट के फील्ड के लिए। इसी के साथ मैं ईशा श्री, कैमरा पर्सन हर्ष और नितिन के साथ, थैंक यू।